Hello everyone. Welcome to our moderation session for 12th board exam, which is one of the important exam in your life. Let me introduce Rehana ma'am. She will guide you. Welcome ma'am. Welcome to our moderation session. Yes ma'am. So myself Rihana Khan and having the moderation experience more than 5 years. So hello everyone, and here I am for you all so that I can help you for scoring good marks, or I can say highest marks or out of 100. So let us start with our chapters. First we have 10 chapters with us. Question number 1, which is an objective question. Most of the time we, as we much study for others, we don't study for objectives. हम हमेशा ये सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स फ्रेंड्स के भरोसे निकल जाएगा, बट विच इज़ रॉन्ग थिंग. हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं करके जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे फ्रेंड्स बता देंगे, बट इज़ इट राइट फॉर एवरीवन? इट इज़ नॉट. एक्चुअली एज पर द गाइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट अभी तो ये रूल आया है कि ओवर राइटिंग इज़ नॉट कंसिडर्ड. सो इफ़ यू आर कटिंग योर आंसर 2 times, third time you are writing your answer, it is not considered. If it is right, then too it is not considered. So we will not consider that answer as in counting of marks. So while writing objectives, you all do one mistake is most common, overwriting. किसी ने फ्रेंड ने बता दिया तो हमने कट करके सेकेंड आंसर लिख दिया, किसी फ्रेंड ने बताया तो हमने कट करके थर्ड आंसर लिख दिया, विच इज़ रॉन्ग वन. हमें नहीं लिखना है. इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट द क्वेश्चन, leave that question and attempt it later on. If you do this mistake again and again, if you are scribbling on paper, continue scribbled on paper, which looks of course odd, but the same thing is it is not considered. Then second one is as per the guidance, as per the guidelines of the government, you have to write both question answer. Means if you have a objective type question, MCQ based question, then you have to write your answer as well as the number 1, 2, 3 as well as ABC, whatever it is written. Okay, means suppose student in true or false without mentioning a sentence, if the students write only true, Yeah. which is the correct answer, of Yes. course, so it's not allowed. No, it is not allowed. You have to write the So question as well. student, you have to write a question, that is statement, and after that you have to write your answer. Same thing follow in a first question, that is correct option, and rewrite the sentence, give one word or one phrase, state true or false, find the odd one. सबके लिए ये applicable होगा Yes sir. मैडम? Question number 1, question के साथ ही आंसर रखना है. Should be noted. देन सेकेंड वन इज़ मोस्ट कॉमन वाइल MCQ. और MCQ में हमेशा देखा गया है कि रेशियो का क्वेश्चन आता है, यू हैव टू फाइंड न्यू रेशियो. सो व्हाट द स्टूडेंट डू? फ्रेंड्स ने बताया 3:2, दे राइट, बट दे फॉरगेट दैट वी आर टीचर्स. हमें भी पता है कि किसी ना किसी ने बताया होगा 3:2. सो यू हैव टू इन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. अगर आपका 1/4 आ रहा है, 1/4 करके वो फॉर्मूला डालने माइन्यूटली सेकेंड्स लगता है. इट कंसिस्ट ऑफ 1 marks. सो इट इज़ जस्ट freebies question, and if you are not doing that, you lose 1 marks. मैडम वन थिंग कि जो भी मतलब इज देयर एनी परफेक्ट combination decided by the board, or they may ask any of this question, means maybe find the odd one, complete your sentence, कुछ भी पूछ सकते हैं, या उनका एक फिक्स है कि ट्रू और फॉल्स आएगा ही, या ऐसा कुछ है? एक्चुअली सर कुछ भी फिक्स्ड नहीं है यहाँ पर. रैंडम क्वेश्चंस हमेशा बोर्ड ने दिखाया है कि कभी ऑड मैन आउट आ रहा है, कभी 1 word आ रहा है, कभी कंप्लीट द सेंटेंस आ रहा है. इन 2022 दे हैव बिल्स ऑफ एक्सचेंज. तो रैंडम क्वेश्चन वो सिलेक्ट करते हैं. दैट इज़ नॉट फिक्स्ड. इस 10 क्वेश्चन में से ही हाँ होगा. करेक्ट. अभी ये जो 10 क्वेश्चन रहते हैं दे आर फ्रीबीज. हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें से ही पता चल जाता है. फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, इफ़ इट इज़ गिवन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, इट इज़ वेल नोन बाय अस कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड क्या आता है. दिस इज़ वेरी कॉमन, एंड
बच्चे यहाँ पर ही ज़्यादा करके लूज़ करते हैं मार्क्सेस, क्योंकि बहुत घाई में रहते हैं। उन्हें लगता है कि ये इतना क्वेश्चंस जो है हम लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे, ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस होता है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि एटलीस्ट focus 50% on these questions, because these questions are more important than sums. It is giving 20 marks as an freebie question. You don't have to put more of much of it. मतलब हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपको डुबा भी सकता है और उड़ा भी सकता है। Yes. आसमान तक। Okay? Because one correct answer you will get a 1 mark straight away. Okay? So यहाँ पे हमें फोकस करना है कि हम मिस्टेक ना करें, ओवर राइट ना करें, ओके, कटिंग ना करें, एंड प्रॉपरली आंसर का मतलब जवाब प्रॉपरली क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हमें लिखना है। ओके ओके, यहाँ तक जो था ये क्वेश्चंस जो थे काफ़ी इजी होते हैं एज़ पर दी बोर्ड हमेशा बोलती है करके हम लोग जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन बनाते हैं वो बहुत इजी होते हैं। और लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग ऑब्जेक्टिव्स मिस करो, बिकॉज बोर्ड हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन ही डालती है। Okay. So shall we proceed with the second question? Yes, sir. Okay. Second question. Now in second question, they provide some group. जैसे कि ये टॉपिक में से ही सेकंड क्वेश्चन आएगा, बरोबर? तो ऐसा कोई फिक्स है कि सेकंड क्वेश्चन में यही टॉपिक आएगा या नहीं आएगा? एक्चुअली होता क्या है कि एडमिशन ऑफ द पार्टनर ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एडमिशन ऑफ द पार्टनर ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमेशा फिक्स्ड होता है क्वेश्चन नंबर 2 में। अदरवाइज पैटर्न अगर बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हुआ तो क्वेश्चन नंबर 2 चेंज होता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखा गया है कि एडमिशन ऑफ द पार्टनर क्वेश्चन नंबर 2 में इज़ फिक्स्ड वन। एंड सेकेंड, रिटायरमेंट डिसोल्यूशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज वेरी करता है। लास्ट ईयर एडमिशन को अपोजिट में रिटायरमेंट आ गया था, उससे पहले एडमिशन के बिहाफ पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गया था। मतलब अल्टरनेटिव फॉलो किया हुआ है। बट एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्वेश्चन नंबर 2 में कहीं ना कहीं हमेशा देखा गया है कि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। ओके, सो इन एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ों में स्टूडेंट को क्या ध्यान में रखना है ताकि उनका मार्क्स ना कटे एंड दे रिसीव्ड मैक्सिमम मार्क्स इन अ पेपर, जैसे कि रूलिंग का हुआ एंड व्हाटएवर? एक्चुअली सर सबसे मेन प्रॉब्लम इज़ दैट कि बच्चे क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ते। लास्ट ईयर द क्वेश्चन वाज ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ड्रॉ द जनरल एंट्रीज, एंड बच्चों ने क्वेश्चन ना पढ़ के लेजर फॉर्मेट ड्रॉ किया, जो कि बहुत मिस्टेक वाला काम था। क्योंकि अगर हम जनरल एंट्रीज के क्वेश्चन में लेजर बनाते हैं, इट गिव स्ट्रेट अवे 0 मार्क्स, बिकॉज क्वेश्चन वो पूछा ही गया ही नहीं है। आप रफ वर्क में भी जनरल एंट्रीज दिखाते हैं तब भी उस पर 0 मार्क्स होते हैं। एडमिशन ऑफ द पार्टनर में बहुत बच्चे यही करते हैं कि फुल क्वेश्चन ना रीड करके, वो सबसे मेन ये चीज़ करते हैं। देन एडमिशन एंड रिटायरमेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गुडविल का कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट मिलता है उनको कि गुडविल बांटे कैसे, ओल्ड पार्टनर्स को देना है, न्यू पार्टनर्स को देना है। बट दिस इज़ सिंपल, व्हेन न्यू पार्टनर एडमिट्स देयर इज़ नो गुडविल फॉर हिम, उसको न्यू गुडविल देना ही नहीं होता है। बट बच्चे यही सेम चीज़ रिटायरमेंट में भी करते हैं कि गुडविल न्यू पार्टनर को, जो रिटायर्ड पार्टनर है उसको भी नहीं देते, विच इज़ रॉन्ग थिंग। रिटायरमेंट में गुडविल तीनों पार्टनर को जाएगा, एडमिशन में सिर्फ 2 पार्टनर्स को जाएगा, विच इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि एडमिशन में क्यों जाएगा और रिटायरमेंट में क्यों नहीं जाता है। Okay. Now, madam, in admission of a partner, is it necessary to calculate a new PSR in every question? इट इज़ नॉट नेसेसरी। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप खुद डिफाइन कर पाते हैं कि जो न्यू रेशियो होता है वो कितना इजीली फाइंड आउट हो जाता है। तो वहाँ पर वर्किंग एज एन वर्किंग नोट न्यू PSR दिखाने की कोई नीड नहीं होती, ना उस पर कोई मार्क्स होता है। Okay. Straight So up. working note doesn't carry any marks. But you have to solve it. Okay. Now in retirement question, again that gain ratio, sacrifice ratio, जैसे कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में sacrifice ratio, इसका वर्किंग नोट दिखाना कितना इम्पोर्टेंट है? सो एक्चुअली वर्किंग नोट अगर आप दिखा रहे हो देन इट इज़ गुड,
इफ़ नॉट इट डजंट गेट एनी मार्क्स। ओके तो अगर आपके पास टाइम है, आप क्वेश्चन देख के, क्योंकि अब समझ में आ जाता है इतना सम सॉल्व करने के बाद कि इसका न्यू रेशियो क्या निकलेगा, इसका ओल्ड रेशियो अभी क्या था, बेनिफिट रेशियो क्या होगा, रिटायर हो रहा है पार्टनर तो कुछ क्वेश्चंस में समझ में आ जाता है, रिटायरमेंट हो रहा है, इफ़ इट इज़ 3:2:1 और थर्ड पार्टनर इज़ गोइंग, देन इट इज़ अज्यूम्ड कि 3:2 ही है अभी न्यू रेशियो। तो ये सारी चीज़ें हमें ओरली समझ में आ जाती है। सो वी डोंट रिक्वायर दिस मच ऑफ वर्किंग इन दिस सेंस। ओके ओके, तो इतना वर्किंग नोट मतलब हमें करेंगे तो अच्छा है, बट नॉट स्पेसिफिकली कि उसका कोई हमें मार्क्स मिलेगा। बरोबर, अगर सिंपल कैलकुलेशन है तो वो आप ऐसे रफ वर्क में दिखा सकते हो। ओके, देन इन अ डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप बेसिकली आपको क्या लगता है कि बच्चे कहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं और कहाँ पे उन्हें वो मिस्टेक्स अवॉइड करना है इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या करते हैं कि हमें क्या करना होता है, एसेट को ट्रांसफ़र करना होता है डेबिट साइड एंड लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड, विच इज़ कैरीज हाफ मार्क्स, विच इज़ फ्री। उसमें कोई क्वेश्चन में ही है वो चीज़ कि डेबिट को उठा के एसेट्स के डेबिट में डालना है एंड लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट में करना है। दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन वन, और ये डिसोल्यूशन का फर्स्ट स्टेप है। बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि कुछ आइटम्स को छोड़ देते हैं, कुछ आइटम को कंसिडर करते हैं, जबकि हमें पूरा बैलेंस शीट में जो आइटम्स होते हैं उसी का कैरी फॉरवर्ड करना होता है। देन सेकेंड थिंग, डिसोल्यूशन में बच्चे वहाँ पर क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं हुआ है कि लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है, विच इज़ कंसिडर्ड कि लाइबिलिटी हमें पे ऑफ करनी है डिसोल्यूशन में, बट बच्चे वो चीज़ पे ऑफ नहीं करते बाय कैश एंड बैंक अकाउंट, वो चीज़ मेंशन नहीं करते। ये चीज़ लाइबिलिटी, सबसे कॉमन मिस्टेक यही है कि लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करनी होती है बट लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं करती। Okay, one common question by the students कि अगर if nothing is mentioned about the asset, whether it's a sold or not, then what is the board rule in this connection? Asset मतलब for asset is given in the balance sheet में आपको asset दिया गया है फर्नीचर, लेकिन वो सेल किया है या नहीं किया है इसके बारे में कुछ बताया नहीं है, तो what board view in this connection? इफ़ इट इज़ नॉट सोल्ड, इट इज़ नॉट टेकन बाय पार्टनर, सो हमें वो वैसे ही छोड़ देना है, उसको कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन डजेंट मेंटेन एनीथिंग, कि उसमें क्वेश्चन में कुछ भी मेंटेन किया हुआ ही नहीं है, कुछ भी मेंशन्ड नहीं है। इट मीन्स कि ना वो सेल आउट हुआ है ना उसको पार्टनर लेके गए, सो वो क्वेश्चन में वो फर्नीचर जो है जहाँ पर था वो वहीं पर रहेगा। Okay, so it is treated as a value. Okay. Okay. Now in the question of bills of exchange, okay, एक थोड़ा और क्वेश्चन, मतलब मैं बच्चों के ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू आस्क यू, जब वो लोग रूलिंग करते हैं या तो क्या वो लोग मार्जिन यूज कर सकते हैं? For the date purpose, you can use the margin from Okay. left side, Okay. not from the right side. Okay. 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 तो मार्जिन वो लोग यूज कर सकते कर हैं सकते हैं फॉर For- द डेट पर्पस। फॉर द डेट पर्पस ओनली। एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि एंट्रीज राइट लिखते हैं, विच इज़ गुड, बट अमाउंट कहीं ना कहीं वो मेंशन करना भूल जाते हैं या अवॉइड करते हैं, फिर लास्ट में कंबाइन एंट्री के चक्कर में दिस इज़ बोर्ड डिक्लेयर्ड कि एंट्री राइट है, अमाउंट रॉन्ग है, देन इट इज़ 0 मार्क्स। Yes, it is. And if amount is right and entry is wrong, then it is 0 marks. If you want marks, then entry and amount should be correct. मतलब अकाउंट्स एंड योर अकाउंट अफेक्टेड एंड द मार्क शुड अमाउंट शुड बी करेक्ट। ओके, अब जो एडमिशन ऑफ पार्टनर का जनरली क्वेश्चन है कि जो मतलब पूछा जाता है कि प्रिपेयर revaluation account, profit and loss adjustment account, revaluation account, partner's capital and balance sheet. So is it necessary to prepare a goodwill account and cash account? It is not necessary because it is not asked. Effect भी दे सकते हैं। डायरेक्ट इफेक्ट दे सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में आज तक
कहीं पे भी गवर्नमेंट ने बोर्ड ने मेंशन नहीं किया हुआ है कि आप गुडविल अकाउंट बनाओ और कैश अकाउंट बनाओ. सो आपको अगर एंट्री पता है तो उसका नीड नहीं है कि आप वो अकाउंट बनाओ, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. तो आपको वो चीज़ नहीं बनानी है. Okay. Then, when they ask you to pass a journal entries in admission, retirement, dissolution, of course, bills of exchange is based on a journal entry only. Is it necessary to make a final total? No, it is not. Actually, the fact is we don't give marks on amount totaled. Okay. Okay. दिस इज मिथ ऑफ द स्टूडेंट कि हमें जनरल एंट्रीज का टोटल करना है. दिस इज वेरी मिथ, बिकॉज उस पर कोई मार्क्स नहीं है. यू आर गिवन मार्क्स ऑन एंट्रीज, द एंट्री यू पास्ड एंड द अमाउंट यू मैंशन ऑन द एंट्रीज. दिस इज टोटली मिथ दैट टोटल करना है. Okay. One student asked कि goodwill account and cash account बनाना necessary नहीं है, but अगर हम बनाते हैं तो marks कट नहीं होंगे. नहीं, कट Okay. 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 मार्क्स कट तो नहीं होते हैं, बट मार्क्स बढ़ा के भी नहीं मिलेंगे. सो मेरा ऐसा पर्सनल व्यू रहता है कि वेस्टिंग टाइम ऑन गुडविल एंड कैश अकाउंट, यू जस्ट गिव अनदर टाइम फॉर अनदर सम. Okay. Specimen of bills of exchange के, but it is objective type of question. Bills of exchange का last 2-3 ईयर से स्पेसिमेन पूछा नहीं है, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है और वेटेज है, या वो आ भी सकता है? सो बोर्ड इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल. बट बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर्मेट क्वेश्चन हमेशा एबीटी में पूछा जाता है. एज पर दी गवर्नमेंट फॉर्मेट, बोर्ड फॉर्मेट, एबीटी में हमेशा 5 मार्क्स का बिल्स ऑफ एक्सचेंज कॉलेज को डालना होता है. बट कुछ कॉलेज अपने हिसाब से एबीटी के एग्ज़ाम्स लेते हैं तो उसमें नहीं पूछते हैं. बट इट इज़ मैंशनड कि एबीटी एग्ज़ाम में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट पूछना ही चाहिए. वन मोर क्वेश्चन स्टूडेंट आस्क कि रफ वर्क कहाँ करे इस सब का? बैक पेज पर या वहीं पे रफ वर्क करना है? मेरे ख्याल से वहीं पे करना इट लुक्स बैड ना, बराबर. प्रेजेंटेशन वाइज आपका पेपर बिगड़ सकता है, तो क्या लास्ट पेज पे हम रफ वर्क कर सकते हैं? यस, आप लास्ट पेज को यूज़ कर सकते हैं, सेकेंड लास्ट पेज को भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर रफ वर्क. बट डूइंग द रफ वर्क लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, it just make moderator irritate. So don't make that mistake, as I am also a moderator. So while checking the paper, जब राइट हैंड साइड हमें मार्क्स देना होता है या लेफ्ट हैंड साइड हमें मार्क्स देना होता है, तो वो मार्क्स कहीं ना कहीं उस रफ वर्क की वजह से अनटाइडी दिखते हैं. इसके वजह से हम ऑलरेडी सजेस्ट करते हैं कि लास्ट पेज एंड सेकेंड लास्ट पेज, यूज़ दैट बोथ द पेज फॉर टैली एज वेल एज योर रफ वर्क. ओके. एक क्वेश्चन था शिव का कि क्या हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं पेपर, तो मैम ने ऑलरेडी आंसर दे दिया था कि बोर्ड इज अनप्रेडिक्टेबल, सो यू हैव टू प्रिपेयर फुल्ली फॉर योर बोर्ड एग्जाम. ओके. फॉर अदर क्वेश्चंस, फॉर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2, एवरीथिंग इज सेम, बिकॉज 2 ऑप्शन ऊपर आएंगे एंड 2 बचे हुए ऑप्शन नीचे आएंगे. सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में जो क्वेश्चंस रहेंगे ऊपर आएंगे 2 और सेम 2 बचे हुए नीचे आएंगे. द मोस्ट आई कैन से एक बहुत छोटी मिस्टेक होती है, हमारे साइड से होती है, लाइक स्टूडेंट के साइड से होती है, कि वो लोग क्या करते हैं जल्दी जल्दी में ना सब सोचते हैं करके हम सब पूरा सम सॉल्व कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 का ए भी अटेम्प्ट करते हैं और वाला ऑप्शन भी अटेम्प्ट करते हैं. सो दोनों क्वेश्चन साइमल्टेनियसली अटेम्प्ट नहीं कर सकते. मेक इट क्लियर, आप साइमल्टेनियसली 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने जाते हैं, आप कहीं ना कहीं अपना ही इमेज डाउन कर रहे हैं मॉडरेटर के सामने, बिकॉज मॉडरेटर आपसे नहीं मिला है, एग्जामिनर आपसे नहीं मिला है. इफ़ यू आर गुड स्टूडेंट, योर पेपर इज स्पीकिंग अबाउट इट. सो अगर आप पेपर अच्छा प्रेजेंट करते हैं, इट मीन्स यू आर ए गुड स्टूडेंट, बिकॉज वी अज्यूम दैट कि अगर आप अच्छे से, अगर आपके 20 के 20 ऑब्जेक्टिव्स राइट है, वी प्रिडिक्ट कि हाँ बच्चा अच्छा है पढ़ने में, तो हम उस हिसाब से थोड़ा लाइट मॉडरेशन जो करते हैं, थोड़ा लाइट हो जाते हैं कि हाँ अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है तो ठीक है, बच्चे ने ऑलरेडी बहुत मेहनत की हुई है स्टार्टिंग में, तो थोड़ा सा
वो कंसेशन वाला जो चीज होता So है. first impression should be Yes, good. yeah. Okay, okay. Yes, it is said that first impression is last impression. Yes, yes. Student asking very small question because they don't want to lose a marks कि अमाउंट कॉलम में अमाउंट ऐसा लिखना ज़रूरी है या रुपीज़ का साइन कर सकते हैं या फुल AMT लिखा चलेगा बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज एनी मार्क्स. बोर्ड डजंट स्पेसिफाई एनी ऑफ दिस थिंग कि अगर आप अमाउंट लिखते हैं AMT लिखते हैं या अमाउंट लिखते हैं या रुपी का सिंबल बनाते हैं तो आपका मार्क्स जाएगा. दैट डजंट कैरी एनी ऑफ द मार्क्स. ना फॉर्मेट पे कोई मार्क्स है. इफ़ यू आर मेकिंग रॉन्ग फॉर्मेट then your marks can be deducted, but amount, rupees, debit amount, credit amount, that doesn't make any sense कि आप wrong कर रहे हो वहाँ पर या फिर वहाँ पर amount नहीं लिखा, rupees का symbol बनाया तो wrong हो जाएगा. It is not like that. ओके. सेम एज अ नरेशन अगर आप नरेशन लिखते हो तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, मगर आप नरेशन नहीं लिखोगे तो योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. ओके ओके. सो कैन वी प्रोसीड फर्दर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4? ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 is a 8-mark question along with the question number 5 again the 8-mark question. यहाँ पे भी बोर्ड ने 4 ये फिक्स है कि इसी टॉपिक में से आएंगे. Yes. Question number 4 and question number 5. This is one of the question which is predictable. कि हमेशा question number 4 में issue of shares हमेशा पूछा गया. उसके अपोजिट चेंज होता है, बट इश्यू ऑफ शेयर्स इज़ वन ऑफ द टॉपिक कि हमेशा बोर्ड ने फिक्स रखा है कि क्वेश्चन नंबर 4 में इश्यू ऑफ शेयर्स आता ही है. लास्ट टाइम इट वाज वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमें ना कॉल्स इन एरियर्स दिया हुआ था, ना 4 फीचर की एंट्री थी. सिर्फ वहाँ पर 3 ट्रांजैक्शंस थे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जिसके 6 एंट्रीज थी एंड 6 एंट्रीज कंसिस्ट ऑफ 8 मार्क्स. जस्ट एंड इनफ. वो 8 मार्क्स इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए थे. बट सेम थिंग इश्यू ऑफ शेयर्स में एज वेल एज जनरल एंट्रीज में जैसे कि बोला जाता है कि अगर एंट्रीज राइट है, अमाउंट रॉन्ग है, देन ऑल्सो इट इज़ 0 मार्क्स. अमाउंट रॉन्ग है और एंट्रीज राइट है, देन टू इट इज़ 0 मार्क्स. फॉर द जनरल एंट्रीज यू हैव टू मेक श्योर कि योर एंट्री इज़ राइट एंड योर अमाउंट इज़ ऑल्सो राइट. Okay, okay. And what kind of question? Again, board is unpredictable, but as per your vast experience, can you predict ki what kind of question they ask in issue of share या death of a partner, analysis of partnership, financial statement and computer accounting को attempt करना कितना सही होगा if you want to score 100 out of 100? फर्स्ट ऑफ ऑल, डेथ ऑफ अ पार्टनर ऑलवेज इट हैज़ बीन सीन कि बेसिक सी चीज़ें आती है कि दैट यू हैव टू मेक सस्पेंस अकाउंट, एंड सस्पेंस अकाउंट बनाना भी नहीं है, खाली हमें एक वर्किंग दिखानी होती है. बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर में, जो हम सोचते हैं करके हम सारा डेथ ऑफ अ पार्टनर में गुडविल कैलकुलेशन, सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर, सब कुछ कैलकुलेट करके जाते हैं. बट लास्ट 2 या 3 पेपर्स में हमने देखा है कि डेथ ऑफ अ पार्टनर में ऑलवेज दैट इज़ फ्री बी क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं जो कि हम लोग पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, वो बेसिक वाले क्वेश्चन आते हैं. देन अगेन इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक बोर्ड ने सिर्फ 2 चीज़ें पूछी है, दैट इज़ अ फॉर्मेट. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 फॉर्मेट है, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, वर्टिकल फॉर्मेट. जस्ट यू हैव टू मेक फॉर्मेट एंड यू हैव गिवन मार्क्स. एंड कंप्यूटर अकाउंटिंग में अभी तक सिर्फ 3 क्वेश्चन आए हैं. इट्स लाइक फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, एंड लास्ट वन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग. इसके बाहर से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है. नाउ कमिंग टू कंप्यूटर अकाउंटिंग, बच्चे सोचते हैं कि इट इज़ थियरी, सो अगर वो थियरी अटेम्प्ट करेंगे तो अदर सब्जेक्ट के जैसा उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स. दिस इज़ रॉन्ग. In BK, you can score 8 out of 8 if you have written 8 points. और ये 4 चैप्टर में उनको कौन से पॉइंट पर ध्यान देना है, जैसे डेथ ऑफ अ पार्टनर हो गया, इशू ऑफ शेयर्स हो गया, कि ये पॉइंट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है या एनालिसिस पे ये ज़्यादा पॉइंट पे ध्यान देना है?
एक्चुअली इश्यू ऑफ शेयर से स्टार्ट करती हूँ. इश्यू ऑफ शेयर्स में बच्चे ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन वाले बेसिक से सम्स आते हैं, जहाँ ओवर सब्सक्रिप्शन पूछा हुआ रहता है, अंडर सब्सक्रिप्शन पूछा हुआ रहता है. ओवर सब्सक्रिप्शन इज़ इनफ. वो क्वेश्चन में सिर्फ उतना ही दिया हुआ है कि ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन. उसके आगे वो नहीं गए हैं कि कॉल्स इन एरियर भी है या फॉर फीचर ट्रांसफ़र करना है. बस नॉर्मल से बेसिक से सम होते हैं. बिकॉज बोर्ड के हिसाब से जो हम प्रेडिक्ट करते हैं कि बोर्ड जो है ओवरऑल सबके लिए पेपर बना रहा है. सो वेदर इट इज़ हैंडीकैप और अ नॉर्मल पर्सन. सो बोर्ड हमेशा ऐसा करता है कि हमेशा ऐसे क्वेश्चंस देने की कोशिश करता है जो कि नॉर्मल हो, हर कोई अटेम्प्ट कर सके. अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल भी आपको कुछ पता नहीं है, तो दैट इज़ योर मिस्टेक. इट इज़ कॉमनली दैट इज़ योर मिस्टेक. आप ये चीज़ नहीं बोल सकते हो कि बोर्ड ने पेपर हार्ड बनाया था. बच्चे हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि बीकी का पेपर बहुत हार्ड आता है, बट इट इज़ नॉट. फ्रैंकली स्पीकिंग इट इज़ नॉट. एनालिसिस ऑफ पार्टनर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जैसे लास्ट फ्यू पेपर्स में दे आस्क यू टू प्रिपेयर ओनली वर्टिकल बैलेंस शीट और वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट आने का चांस मैडम कितना है? दिस रिपीटेडली आस्क a question by the student because they find some difficulties in cash flow statement. या एक्चुअली टू बी फ्रैंक, बोर्ड ने आई थिंक सो, कभी कभी मुझे फील होता है कि बोर्ड हैड डन समथिंग मिस्टेक, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है वो SY FY लेवल का होता है और वो आप लोगों को डाला गया है. तो मुझे समटाइम्स ऐसा फील होता है कि दैट इज़ द मिस्टेक ऑफ बोर्ड, कि आपके पोर्शंस को कुछ ज़्यादा ही हाईलाइटेड हो गए हैं. देन नेक्स्ट थिंग इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट अभी तक तो पूछा गया नहीं है. वी आर अज्यूमिंग कि वो आगे भी पूछा नहीं जाएगा, बट अगेन सर it is unpredictable. But You have to prepare yourself for all the questions. Yes. Okay. But I don't think so आप लोगों को कैश फ्लो पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन आस्क्ड. सो आई होप कि वो नहीं पूछा जाएगा. Okay. In case of a death of a partner, is it possible they ask you to prepare a entire accounting, means like a admission of partner, revaluation account, partner's capital, and even a balance sheet after death? Is there any chance? Because the question is for 8 marks only. And अभी तक का जो बोर्ड का प्रैक्टिस है पिछले 10 साल से और more than 10 years कि they ask to prepare only deceased partner's capital account. सर इट इज़ लाइकली चांसेस कि ये चीज़ होगा, कि बैलेंस शीट के क्वेश्चंस भी आएंगे कि आफ्टर डेथ बैलेंस शीट प्रिपेयर करो. बट जो उसमें आइटम पूछे हुए रहेंगे वो बहुत स्मॉल रहेंगे. फॉर एग्जांपल सन्ड्री क्रेडिटर्स को पे किया हुआ है या प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया. द मोर इम्पॉर्टेंट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट which has been provided, detailed information is provided, and you have to calculate the profit which consists of 1 marks. इट मीन्स कि आप लोग जो सम प्रिपेयर कर रहे हो उसमें एक चीज़ याद रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस जो रहता है वो उसमें कुछ चीज़ें रहती हैं कि वो कंफर्म आनी ही होती हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं तो डेप्रिसिएशन हर एक सम में आता है, विच इज़ नॉट कंसिडर्ड एड कि हम लोग उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज डेप्रिसिएशन हर एक सम में आता है, हर एक चीज़ में वो पूछा जाता है. सो इट इज़ कंसिडर्ड कि वो आ सकता है बैलेंस शीट में भी. सो इस क्वेश्चन को आपको ठीक है, वो पॉइंट हम बाद में भी कवर करेंगे, टाइम एलोकेशन एंड ऑल. मैम विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू अबाउट दिस. हम पहले 1 by 1 टॉपिक ख़त्म करते हैं और अब बाद में जनरल पॉइंट्स की तरफ हम आ जाएंगे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6. आई थिंक देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट. दे ask, means board ask only one question and you have to solve that question, and that question is from NPO, right ma'am? Okay. And question number 7 is of course 12 marks, which is final account, again for 12 marks. So what about this 2 question? Because these 2 question carry a maximum marks. Okay, फाइनल अकाउंट से ज़्यादा बच्चे डरते हैं एनपीओ के लिए, तो एनपीओ में उन्हें किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है, बरोबर? व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आस्क, जस्ट इलैबोरेट मैम प्लीज.
फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विथ फॉर्मेट. हम सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बट वाइल ड्राइंग इट इज़ एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट बिकॉज एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड एंड इनकम इज़ ऑलवेज क्रेडिटेड. बच्चे सबसे मिस्टेक यही करते हैं सर कि फॉर्मेट में जैसा हम बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वो ड्रॉ भी वैसे ही करते हैं. इनकम साइड डेबिट होता है उनका और एक्सपेंडिचर साइड क्रेडिट, विच इज़ रॉन्ग फॉर्मेट. डायरेक्टली बोर्ड हैज़ गिवन अस इंस्ट्रक्शन, just give 0 marks to that student. Okay. Because format is important. And second thing, posting carries mark. हमें यहाँ पर एक एक चीज़ जो पोस्टिंग होती है उस पर मार्क्स मिलता है. फॉर एग्जाम्पल आपको सैलरीज आया विच इज़ डेबिटेड इन एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट कैरीज हाफ मार्क्स. मतलब एक पोस्टिंग आपको हाफ मार्क्स दिलाता है. आपको ऐसा हमेशा लगता है और स्टूडेंट के बीच में ये मिथ होती है सर कि टैली के 12 मार्क्स मिलते हैं, टैली के 12 मार्क्स मिलते हैं. इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपका दोनों साइड अमाउंट बराबर आ गया बैलेंस शीट में तो आप लोगों को टैली हो गया. इट इज़ नॉट लाइक दैट. आप एक एक जो पोस्टिंग करते हैं आइटम्स उस पर भी मार्क्स होते हैं आपको. और कुछ चीज़ें तो कन्फर्म होती हैं. फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड एसेट, हमेशा फिक्स्ड डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, फंड्स, ये फंड्स लाइबिलिटी में आता है. डेबिट साइड में सैलरीज आती हैं. तो कुछ चीज़ें तो हमेशा कंफर्म होती है. अगर आप ऐसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आपको पोस्टिंग पे मार्क्स मिलती है. देन कमिंग टू एडजस्टमेंट्स, आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, मोस्ट आई कैन से कि आज क्वेश्चन है प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग. हमेशा क्वेश्चन आंसर्स आते ही हैं और स्टूडेंट यही करते हैं कि आउटस्टैंडिंग को लेस करते हैं, प्रीपेड को ऐड करते हैं. आई डोंट नो कि क्या ऐसा प्रॉब्लम आता है कि प्रीपेड तो ऑलरेडी पेड रहता है तो उसे लेस करना होता है, आउटस्टैंडिंग इज पेंडिंग सो यू हैव टू ऐड. ये बेसिक सी चीज़ है. अगर आप ये बेसिक चीज़ कर रहे हैं कि सैलरी में ऐड कर रहे हैं आउटस्टैंडिंग और उसको लाइबिलिटी में लिख रहे हैं तो वो 1 मार्क्स दे रहा है आपको, विच इज़ कन्फर्म कि वो आना ही आना है. आउटस्टैंडिंग का एक क्वेश्चन हमेशा रहा है और प्रीपेड का भी एक क्वेश्चन हमेशा रहा है. देन नेक्स्ट इज़ डेप्रिसिएशन. हमेशा डेप्रिसिएशन में दोनों इफेक्ट देने पे 1 मार्क्स है. तो 3-4 मार्क्स तो हमें ऐसे ही पता होते हैं कि ये चीज़ें तो आनी ही है. तो ये चीज़ें आनी है इट मीन्स कि वो चीज़ें आएंगी और वो जो चीज़ें आ रही हैं वो तो हमें पता है कि वो हम कर सकते हैं. देन नेक्स्ट इज़ डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन टैली. अगर आपका टैली नहीं हो रहा है देन प्लीज़ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. आप उस पर इतना प्रेशराइज करते हैं कि टैली करना है, टैली करना है, टैली नहीं हो रहा है तो आप दूसरे क्वेश्चंस को स्किप करने लगते हैं. आपका टाइम जो है वेस्ट हो रहा है अब. और नेक्स्ट इज सरप्लस. सरप्लस के नीचे जो लिखना होता है इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, दैट इज which is it consists of minimum 30 seconds to write, but it matters. Yes, but it is essential to Yes, write. it is right. Okay, points to be noted, student. हम सिर्फ सरप्लस या डेफिसिट लिख के नहीं छोड़ सकते. We have to write if it is surplus, then it is a income over expenditure, and if it is deficit, then it is a expenditure over income. Okay. Now generally student feel that कि अगर उनका सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट गलत हो गया तो they will lost all the 12 marks. Is it true? मैंने वही बोला कि अगर आप सब्सक्रिप्शन के जितने भी सम्स देख लें उसमें प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड प्रेसिडिंग ईयर 3 ईयर्स के रहते हैं. हमेशा ये याद रखना कि जो सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट है वो सिर्फ 1 मार्क्स का होता है. मतलब ओवरऑल सब्सक्रिप्शन कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 मार्क्स. तो अगर आप खाली उसको अगर रॉन्ग कर रहे हैं इट मीन्स कि यू आर लूजिंग ओनली 1 मार्क्स. सो वाई नॉट फोकस ऑन 11 मार्क्स. Okay. And for partnership final account, what point should be considered by the students to score a maximum marks and to avoid their mistakes? And एक बड़ा प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम टैली नहीं हो रहा है. बरोबर. यस, एक्चुअली द थिंग इज़ फाइनल अकाउंट्स में हमारे दिमाग में एक ऐसा चीज़ बैठ गया है कि अगर फाइनल अकाउंट्स है तो इट मीन्स हमें टैली करना ही है. बट इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हमारा टैली नहीं हो रहा है तो हम सबका सब पूरा मार्क्स ये कर रहे हैं. इट इज़ नॉट लाइक दैट. जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो हमें पता होते हैं. परचेस आने वाला है, स्टॉक आने वाला है, ओपनिंग स्टॉक कंपलसरी है, ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है, ये सब चीज़ हमें पता होता है और वो कंसिस्ट करता है 5 मार्क्स के लिए. तो वाई नॉट टू गेट 5 मार्क्स सो ईजीली.
जो चीज़ें ऑलरेडी हमें पता है, जो हर एक सम में हम फेस करते हैं। एंड मोस्ट फेवरेट एडजस्टमेंट जो होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हर एक सम में अभी तक के सारे एग्जाम्स में ये देखा गया है कि क्लोजिंग स्टॉक आता ही आता है। सो क्लोजिंग स्टॉक इटसेल्फ कंसिस्ट ऑफ 1 मार्क्स, तो क्लोजिंग स्टॉक तो हमें करना ही होता है। देन मोस्ट फियरेबल एडजस्टमेंट इज़ आरडीडी, जो कि सिर्फ ओनली हाफ मार्क्स कंसिस्ट करता है, बट हमारे अंदर इतना फियर होता है कि आरडीडी का सम आ गया तो आरडीडी इज़ लाइक नहीं होगा हमसे। आरडीडी का जो पूरा एडजस्टमेंट रहता है इट ओनली कंसिस्ट ऑफ हाफ मार्क्स। तो आप खुद सोचो कि हम लोग जिस चीज़ के पीछे इतना भाग रहे, लाइक आरडीडी एंड एनपीओ में जो टैली करने के लिए सब्सक्रिप्शन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्सक्रिप्शन को 1 मार्क्स एंड आरडीडी को हाफ मार्क्स। तो आप खुद सोचो जिसके लिए हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ज़्यादा सम्स प्रैक्टिस करते हैं, वो हाफ मार्क्स और 1 मार्क्स के लिए आ रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमें कितना प्रैक्टिस की नीड है। अभी लास्ट मोमेंट पे आते आते बच्चे बहुत सारे स्टक हो जाते हैं कि अगर हमें टैली करना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये देखना है कि जो क्वेश्चन होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, अभी लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन थे उसमें ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी दिया हुआ था, बट फिर भी बच्चों ने सेम मिस्टेक की, उन्होंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, वापस अगेन ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट किया और ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करके फिर अगेन उन्होंने एनपीओ फाइंड, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। आप लोग ने अच्छे से नहीं देखा, दैट मीन्स इट इज़ योर मिस्टेक, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर वॉज टू मच ईजी। Okay. One more question from the student. If life membership fee is given, so is it necessary to capitalize or it will be treated as a revenue for as per board rule? It should be a capitalize in as per textbook. But what is the board rule in that? If your adjustment is telling that it should be capitalized, then only it is capitalized. अगर क्वेश्चन में या एडजस्टमेंट में ये चीज़ नहीं बता रहा है तो इट विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। अगर क्वेश्चन नहीं बता रहा है कि इट इज़ ट्रीटेड एज फंड, कैपिटल फंड, इट शुड बी एडेड टू कैपिटल फंड, अगर वो नहीं बता रहा है इट मीन्स इट इज़ एन रेवेन्यू इनकम। फाइनल अकाउंट में अगर उनका ग्रॉस प्रॉफिट करेक्ट है, नेट प्रॉफिट करेक्ट है, बट बाय एनी चांस देयर बैलेंस शीट इज नॉट टैलीड, तो हाउ मच मार्क्स दे लूज जनरली आउट ऑफ 12? Actually only 1 marks. You will get 11 marks because it is like कि जो टैली होता है it is only about 1 marks. Liability side half marks and balance sheet asset side half marks. If you are not tallying or you are not able to tally the sum, you only lose 1 marks. You will exactly get 11 marks. If your gross profit is right, your net profit is right, everything is right. Okay. So this is our question wise discussion. Now anything you would like to add, ma'am? अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले ही पूछ लिया कि मार्जिन यूज करना उनके लिए नेसेसरी, मतलब मार्जिन वो लोग यूज कर सकते हैं, तो फॉर डेट पर्पस दे कैन यूज मार्जिन, डेट पर्पस के लिए वो मार्जिन यूज कर सकते हैं। सबसे बड़ा एक क्वेश्चन बच्चों को मतलब परेशान करता है, इज इट नेसेसरी टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन इन सीक्वेंस? Definitely no. For example, if you are solving question number 1, then you can attempt question number 7 directly. There is no need to wait for the question number 2, 3, 4. If you are able to solve, you can directly jump on question number 7. Then next one is, I always suggest student कि जब हमारे पास 15 मिनट्स का टाइम होता है तो हम 15 मिनट्स में अननेसेसरी लाइन ड्रॉ करते हैं, जस्ट टू अवॉइड इट, कि इतना लाइन्स की ज़रूरत नहीं होती है। अभी जब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1, यू जस्ट ड्रॉ द लाइन और बोथ द साइड ड्रॉ द मार्जिन फॉर ऑब्जेक्टिव्स पर्पस ओनली, और फिर उसके बाद में आप सेकेंड थर्ड पेज से डायरेक्टली एनपीओ का, फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट ऑलरेडी ड्रॉ करके रखो, बिकॉज आप हमेशा ये चीज़ भूल जाते हैं कि आप लाइन मारने के चक्कर में पूरा सम जो रहता है आगे पीछे कर देते। सो इट इज़ मोर बेटर
कि आप स्टार्टिंग में जो है क्वेश्चन में ही जब आपको 15 मिनट्स का टाइम मिलता है तो आप ऑब्जेक्टिव्स के बाद डायरेक्टली फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट बना सकते हैं, एनपीओ का फॉर्मेट बना सकते हैं, एडमिशन का फॉर्मेट बना सकते हैं. बट अगेन एडमिशन का फॉर्मेट बनाने में एक प्रॉब्लम आती है कि जनरल एंट्रीज पूछ लिया तो ओके. तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके लिए परफॉर्मा हमारे पास रेडी होना चाहिए, दैट इज फाइनल अकाउंट्स एंड एनपीओ. सो आफ्टर ऑब्जेक्टिव्स यू कैन डायरेक्टली जंप ऑन क्वेश्चन नंबर 7 and 6. Okay, okay. So there is no sequence required. Okay, मतलब there is no deduction of marks because of sequence. मतलब क्वेश्चन नंबर 4 भी पहले सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी पहले सॉल्व कर सकते हैं. एनी क्वेश्चन दे कैन सॉल्व फर्स्ट. देर इज नो सीक्वेंस इज रिक्वायर्ड. तो कोई मार्क्स उनका डिडक्ट होगा नहीं. आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी नंबर के बाद सॉल्व कर सकते हो. ओके, और यू कैन स्टार्ट योर पेपर फ्रॉम एनी क्वेश्चन. मोस्ट कॉमन मिस्टेक विच स्टूडेंट डन इन फाइनल अकाउंट, 2 टाइम पोस्टिंग. हम इतने घाई में होते हैं कि हम कभी कभी 2 बार पोस्टिंग कर देते हैं. हमें पता नहीं चलता कि हमने पोस्टिंग कब की, कहाँ की, और उस टाइम पे हमें ये रियलाइज़ भी नहीं होता कि हमने 2 बार पोस्टिंग की है. देन सेकेंड थिंग इज़ क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट इज़ मोर एंड मोर नेसेसरी, बिकॉज सेकेंड इफेक्ट जो है बैलेंस शीट में अगर नहीं आएगा तो सम विल नॉट टैली. बट जो बच्चे करते हैं ये कॉमन मिस्टेक है कि सेकेंड इफेक्ट नहीं देते क्लोजिंग स्टॉक का. देन अगेन डेप्रिसिएशन, हम डेप्रिसिएशन एसेट से लेस तो कर देते हैं बट अगेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका सेकेंड इफेक्ट देना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से एक सम टैली नहीं होता है. देन नेक्स्ट इज रफ वर्क. यू हैव टू मेंटेन इनर कॉलम एज वेल एज एक्सटर्नल कॉलम और आउटर कॉलम, सो दैट आप जो आरडीडी है या डेप्रिसिएशन का कॉलम है वो चीज़ें आप अंदर सॉल्व करो, डायरेक्टली आप बाहर मत सॉल्व करो. आउटर कॉलम में सॉल्व करना है दैट इज़ नॉट रिलायबल, बिकॉज आप क्वेश्चन आउटर कॉलम में जो रहता है वो सिर्फ अमाउंट स्पेसिफाइड रहता है. तो बच्चे यही मिस्टेक करते हैं कि वो आउटर कॉलम में सॉल्व करते हैं, आउटर कॉलम में अमाउंट लिखते हैं, फिर काउंटिंग करने के टाइम पे वो डबल ट्रिपल टाइम काउंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन लेस करके हमने आउटर कॉलम में लिखा, बट डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी अगर आउटर कॉलम में लिखा हुआ है तो वो अमाउंट डबल हो जाता है. तो हम लोग ने जो लेस किया वो ऑलरेडी वो आउटर कॉलम में आना चाहिए. तो सेम मिस्टेक की वजह से हमें हमेशा देखा हुआ है कि वो चीज़ टैली नहीं है. वन मोर क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड बाय द स्टूडेंट, क्या वो शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं? जैसे कि लाइक दैट कि इंस्टेड ऑफ आउटस्टैंडिंग दे यूज O/S. आउटस्टैंडिंग में O/S जो है हम लोग यूज़ करते ही हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम में वो यूज़ करते ही हैं. आप एग्ज़ाम में अगर वो लिख रहे हैं तो आपका मार्क्स नहीं जाएगा, मेक श्योर इट कि उसका मार्क्स बिल्कुल नहीं जाता. एंड लास्टली जस्ट फोकस कि हाउ स्टूडेंट शुड मैनेज देयर टाइम इन अ पेपर. मतलब किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए, बरोबर? किस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम उनको देना चाहिए, किस क्वेश्चन में उनको फर्स्ट अटेम्प्ट करना अप्रिशिएबल होगा फ्रॉम स्कोरिंग पर्पस, कि भाई क्वेश्चन नंबर आप 1 सॉल्व करो फर्स्ट, देन क्वेश्चन नंबर 4 करो, एंड लाइक दैट. इट इज़ ऑलवेज प्रिफरेबल कि हम ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करें, बिकॉज हमने हमेशा देखा है कि जो बच्चे ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं और अगर उनके 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स राइट हैं तो हम ऐसा मॉडरेटर के माइंड में आ जाता है कि दैट पेपर इज़ वेरी नाइस, बच्चा स्टूडेंट इज़ वेरी नाइस. तो वो हमेशा ऐसा प्रीफर करते हैं हम कि फिर जब थोड़ा लीनियंट होते जाते हैं बच्चों के साथ कि हाँ क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क्स वो अच्छा लिखा है तो आगे के भी क्वेश्चन उसने अच्छे लिखे होंगे. तो अगर कहीं पे भी आप स्मॉल सा मिस्टेक भी करते हैं, वी टीचर अवॉइड इट, वी मॉडरेटर अवॉइड इट, जस्ट बिकॉज कि आपने ऑब्जेक्टिव्स अच्छा लिखा हुआ है. सो इट इज़ प्रिफरेबल कि ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट अटेम्प्ट करें. देन यू शुड नॉट गिव मोर देन 15 मिनट्स टू क्वेश्चन नंबर 1. बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और 15 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है और 15 मिनट से ज़्यादा उस क्वेश्चन में लगना भी नहीं चाहिए. देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ, जो भी क्वेश्चन हो 20 मिनट से ज़्यादा उसे भी टाइम नहीं देना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 20 मिनट से ज़्यादा देते हैं तो बाकी क्वेश्चन को आप लूज़ करने लगते हैं, बाकी क्वेश्चन के टाइमिंग जो रहते हैं आपके कम होते जाते हैं. देन अगेन सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, 20 मिनट इज़ मोर देन इनफ फॉर टैली, मोर देन इनफ.
Then question number 4 and 5, it also it should be of 20 minutes, because आप 20 minutes दे रहे हैं. It means कि आप 3 क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 को 10 मार्क्स के क्वेश्चंस को अगर आप 20 मिनट्स दे रहे हैं, मोर देन इनफ है वो चीज़. ओके ओके. वन मोर क्वेश्चन मीन्स एक जनरल थ्योरी, मतलब एक हम निकाल सकते हैं कि आपका जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, डबल द मिनट यू कैन यूज फॉर द आंसर. बरोबर, मतलब अगर क्वेश्चन आपका 10 मार्क का है तो 20 मिनट में आप ट्राई टू कंप्लीट दैट क्वेश्चन. आपका क्वेश्चन अगर 8 मार्क का है तो इन 16 मिनट्स ट्राई टू कंप्लीट. सो ऐसे 160 मिनट्स में वो लोग क्वेश्चन कर सकते हैं. एंड स्टिल you have a 20 minutes in your hand to check your paper. Okay. One more thing, स्टूडेंट आस्क कि जनरली वो फेस करते हैं प्रॉब्लम कि जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट इज लिटिल वाइडर, 3 पार्टनर्स आर देयर, तो वो टाइम पे मार्जिन यूज कर सकते हैं. द स्टूडेंट आस्किंग दिस क्वेश्चन. फॉर कैपिटल अकाउंट हमेशा हमें ऐसा देखा गया है कि पर्टिकुलर जो है मार्जिन के अंदर आ जाता है फॉर लेफ्ट साइड, बट डोंट यूज़ राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड हमें नहीं यूज़ करना होता है बिकॉज इट इज़ फॉर द मॉडरेशन. वो राइट हैंड साइड ना यूज़ करके हम लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ कर सकते हैं. Okay, okay. Now in question of admission or retirement, they ask you कि stock is revalued, assets is revalued. So instead of using the word appreciation or depreciation, can they use the word revalued? Yes, revalued. You can write revaluation or revalued, add or less, whatever it you are getting benefit of it. Like आप जिसमें ज़्यादा आप कंफर्टेबल हो आप वो वर्ड यूज़ लिख सकते हो. वर्डिंग्स पे कोई मार्क्स नहीं है और आपके वर्डिंग्स पे कोई भी मार्क्स नहीं जाने वाले. By examiner as well as by moderator. Okay, great. तो this is a time management कि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट उतना टाइम देना है जितने मार्क्स का वो क्वेश्चन है उससे डबल मिनट. मतलब 20 मार्क का अगर आपका ऑब्जेक्टिव है तो 40 मिनट, एक्चुअली 40 मिनट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द ऑब्जेक्टिव. नाउ मैम आई वुड लाइक टू आस्क यू कि एज अ एवरेज स्टूडेंट्स, बरोबर, अगर बच्चे ने अभी पढ़ना शुरू किया है, नाउ ओनली 33 days in his hand, so is he able to pass the exam with a good marks? So any tip from your side? एक्चुअली अगर अभी पढ़ाई स्टार्ट किया है तो बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा रहता है कि बीके में पास नहीं हो सकते. बट आई कैन से दैट कि अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है फ्रॉम 7 years का, मैंने हमेशा देखा है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं. बस एक चीज़ याद रखना कि ब्लैंक पेपर नहीं छोड़ना, बिकॉज ब्लैंक पेपर डजंट कंसिस्ट ऑफ एनी मार्क्स. तो ब्लैंक पेपर ना रख के आप कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट पोस्टिंग करो. देन जो बच्चा अभी स्टार्ट किया है, मेक श्योर कि आप इंटरनल में या एबीटी एग्ज़ाम में आउट ऑफ स्कोर कर सके या 18 एटलीस्ट स्कोर्स कर सकते. देन ऑब्जेक्टिव्स में ट्राई करें कि एटलीस्ट हमारे पास 18 to 19 मार्क्स हो. एक आध दो जाता है पता है, बट एटलीस्ट ट्राई करें कि 18 to 19 मार्क्स हो. मतलब वहाँ से 18-19 हो गए और यहाँ से 18-19 हो गए, 36-37 मार्क्स आराम से हो जाते हैं. देन नेक्स्ट एक आप कोई ऐसा टॉपिक प्रिफर करो कि आपको सॉल्व करने में काफ़ी ईजी हो. मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि 2 टॉपिक करो, कि इश्यू ऑफ शेयर्स, बिकॉज इट इज़ अ कंपलसरी क्वेश्चन. इश्यू ऑफ शेयर्स आना ही है, तो एक आपने इश्यू ऑफ शेयर्स ले लिया और सेकेंड थिंग आपने एडमिशन ले लिया. तो अगर 2 चैप्टर भी कर रहे हैं तो आप 10-18 मार्क्स का सम्स यहाँ से ले रहे हैं. 20 मार्क्स अगर 18-19 मार्क्स अगर आप ऑब्जेक्टिव से ले रहे हैं और 18-19 मार्क्स अगर एबीटी से मिल रहा है, यू आर स्कोरिंग मोर देन 50 मार्क्स, विच इज़ मोर ईजियर देन अदर सब्जेक्ट. ओके. वन मोर क्वेश्चन कि बहुत बार बच्चे कहते हैं कि हमारा हैंड राइटिंग बहुत बड़ा है, बरोबर, तो कैन दे यूज साइमल्टेनियस पेज फॉर द नो? मतलब कैपिटल अकाउंट दे हैव टू ओपन इन अ 1 page ओनली, स्टूडेंट्स पॉइंट टू बी नोटेड. आपको अकाउंट एक ही पेज पे लिखना है, मतलब 2 आमने सामने के पेज पे आपको नहीं सॉल्व करना, इट विल लॉस्ट योर मार्क्स.
एक्चुअली मैं लास्ट ईयर का ही इसमें केस बताऊंगी कि लास्ट ईयर बच्चे ने यही किया था। उसकी हैंडराइटिंग में भी थोड़ा एवरेज स्टूडेंट जैसी थी, काफ़ी बड़ी बड़ी थी। उसने दोनों पेज यूज़ किया था। तो एग्जामिनर ने क्या किया था कि फर्स्ट पेज उसने कंसिडर किया था, सेकंड पेज उसने कंसिडर नहीं किया था, विच वॉज रॉन्ग, क्योंकि सेकंड पेज पे उस बच्चे को 3 मार्क्स मिल रहे थे, जिसकी वजह से वो पास हो सकता था। सो 3 मार्क्स इज़ नॉट अ स्मॉल मार्क्स, जो फेल होने के लिए भी बहुत कुछ करता है और पास होने के लिए भी बहुत कुछ बताता है। ओके, रिवीजन के लिए अभी जो बच्चे रिवाइज कर रहे हैं तो उनके लिए कोई सीक्वेंस की ये टॉपिक पहले आप कंप्लीट कर लो रिवाइज करके, बरोबर, या ये टॉपिक थोड़ा बाद में आप रिवाइज कर सकते हो, ऐसा कोई सीक्वेंस? मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि रिवीजन के टाइम पे मेक श्योर कि आप डेली एटलीस्ट 2 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से सॉल्व करो। हर एक टॉपिक इज़ नॉट नेसेसरी कि आप एक ही दिन में सारा बुक ख़त्म कर दो, बट एटलीस्ट आप एक दिन एडमिशन ले रहे हैं तो एडमिशन के 2 क्वेश्चन, रिटायरमेंट के 2 क्वेश्चन, और मोर फोकस्ड ऑन कि एडमिशन तो हर बार पूछा ही गया है। अपोजिट चाहे आप जनरल एंट्रीज ले लो या लेजर ले लो, एडमिशन हमेशा क्वेश्चन नंबर 2 में आता ही आता है। सो ज़्यादा करके फोकस करो कि एडमिशन कर सको। नेक्स्ट इज़ फाइनल अकाउंट्स, क्योंकि उसको भी कोई और अपोजिट भी नहीं है और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो इट इज़ कंपलसरी फॉर यू ऑल। सो फाइनल अकाउंट्स और एडमिशन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की नीड है। बाकी आप रिटायरमेंट, डेथ को थोड़ा सा कम टाइम देंगे तो भी चलेगा, बिकॉज आप ऑलरेडी एडमिशन जो है उसका एक बोल सकते हैं कि पूरा बल्क है उसमें, सब कुछ है उसमें। तो डेथ और इस रिटायरमेंट को थोड़ा कम भी टाइम मिलेगा तो भी चलेगा। ओके, सो रिपीटेडली अगेन आई सेड कि आप एक ही पेज पे आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है। आप 2 पेज, मतलब एक पेज पे डेबिट एंड अपोजिट पेज पे क्रेडिट ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज अगर एग्जामिनर वो चेक नहीं करेगा तो यू विल लॉस्ट योर मार्क्स। सो ट्राई टू फिट योर आंसर इन वन, मतलब वन अकाउंट, एंटायर अकाउंट इन अ 1 पेज ओनली। ओके, पेपर बोर्ड का पेपर साइज थोड़ा बड़ा भी होता है एज कम्पेयर टू अवर A4 साइज नॉर्मल पेपर, तो वो 3 पार्टनर भी आराम से आ सकते हैं। उनको भी पता है कि 3 पार्टनर हमने पूछा है तो बच्चा 3 पार्टनर के कैसे बनाएगा, तो दैट केयर ऑलरेडी टेकन बाय द बोर्ड। ट्राई टू फिट योर आंसर इन दैट साइज ओनली। ओके, एनीथिंग यू नीड टू वांट टू ऐड मैम? कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आज की ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से करें? मोस्ट ऑफ द टाइम हमने यही देखा है कि ऑब्जेक्टिव्स बाहर से नहीं आते, टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चंस होते हैं। Oh, that's a good news, great news for the student। Yes, of कि course। आपको बोर्ड का ही ऑब्जेक्टिव, मतलब टेक्स्ट बुक का ही ऑब्जेक्टिव्स करना है। यस, Great। टेक्स्ट बुक के ऑब्जेक्टिव्स के अपार्ट कोई भी क्वेश्चन आउटसाइड से नहीं पूछा जाता है। देन मोर स्पेसिफिकली आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। फाइनल अकाउंट्स में हमेशा ये देखा गया है कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो टेक्स्ट बुक के पीछे से ही आते हैं। मतलब जो हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होते हैं वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में ही होते हैं। बोर्ड क्या करती है कि वो क्वेश्चन को अमाउंट डबल कर देती है, समटाइम्स वो अमाउंट को हाफ कर देती है, बट क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि बाहर से क्वेश्चन आया था, इट इज़ इम्पॉसिबल, बिकॉज आपके टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस होते हैं उसी को अमाउंट हाफ करके या अमाउंट डबल करके सेम क्वेश्चन ही बोर्ड डालती है। Okay. One more question in a final account. Is it necessary to prepare only one account as a trading and profit and loss account, or student can prepare trading account separately or profit and loss account separately? मतलब फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट, देन उन्होंने नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग से बनाया, तो इज इट ओके? फाइन, ओके। सो आप एक भी बना सकते हैं, आप अलग अलग भी बना सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या करते हैं कि टाइम कंजेस्टेड होता है तो ऑलरेडी परफॉर्मर जो रहता है वो हाफ करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने बोला कि जब आपके पास 15 मिनट्स का टाइम होता है, ऑब्जेक्टिव्स लिखने के लिए 2 पेज मोर देन इनफ होता है, और 2 पेज और 3 पेज अगर आपकी हैंडराइटिंग बड़ी है तो नेक्स्ट 4th पेज या 5th पेज पे आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ड्रॉ कर लो, बैलेंस शीट ड्रॉ कर लो। अगर आपका हैंडराइटिंग भी बहुत बड़ा बड़ा है तो एक पेज पे एक अकाउंट भी अगर आप बना रहे हो देन इट इज़ फाइन, कि हमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा कि चेक करने में प्रॉब्लम होगा या फिर कुछ भी नहीं होता है वो चीज़। ओके ओके ओके, नाइस डिस्कशन। तो कुछ पॉइंट्स आपको बच्चों
दिमाग में एम्बाइब करना है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव के बारे में जो मैम ने पहले कहा था कि ऑब्जेक्टिव यू हैव टू राइट अ क्वेश्चन and then you have to write an answer. Only answer will not carry any marks. आपको क्वेश्चन भी लिखना है, जैसे कि ट्रू और फॉल्स में स्टेटमेंट है वो पहले लिखना है और नीचे उसका आंसर लिखना है, और उसमें आपका आंसर कंफर्म होना चाहिए। अगर आप वहाँ पे कटिंग करते हो तो इवन दो योर आंसर इज राइट, यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स। ओके, दैट्स इट। ओके, तो ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है, और जैसे हमने बाकी डिस्कशन किया है, एनीथिंग यू हमारे स्टूडेंट, हमारे बच्चों के लिए, फॉर जेकेएससी स्टूडेंट। बच्चों एक चीज़ याद रखना कि योर फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द बेस्ट पेपर आई हैव एवर चेक्ड इन माई लास्ट 7 years was लास्ट ईयर। एक स्टूडेंट था जिसने ऑब्जेक्टिव्स 20 मार्क्स के विथ क्वेश्चन उसने राइट लिखा था। इवन एक सिंगल लाइन स्क्रिबल्ड उसके पेपर पे नहीं थी। आई गॉट सो रिलीव्ड कि हाँ पेपर अच्छा है। देन आई केम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इट वॉज। बच्चे ने सारा पोस्टिंग सही से किया था, सारा सब कुछ सही किया था, एक स्क्रिबल नहीं थी और ना ही एक अमाउंट थोड़ा भी रॉन्ग था। फाइनल अकाउंट इट वॉज परफेक्टली टैलिड, सो इट कंसिस्ट ऑफ 12 मार्क्स, सो उसको वहाँ पर भी 12 मार्क्स मिले। एनपीओ में भी उसने सेम चीज़ किया, पूरा पेपर सही था, सब कुछ था, टैली था। इवन दो एक स्क्रिबल भी बोल सकते हैं कि उसने नहीं किया था पेपर पे, सेम बाकी क्वेश्चन में। एंड उस बच्चे के पास इतना टाइम था कि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का भी उसने बाकी का पार्ट किया हुआ था, मतलब उसने क्वेश्चन नंबर 2A और वाला सेक्शन भी किया हुआ था उसके पेपर में। इट वॉज लाइक सो परफेक्ट पेपर। आई वॉज सो एक्साइटेड टू गिव हिम 80 out of 80 एज एन मॉडरेटर, गिविंग 80 out of 80। और उसको बच्चे को अगर ABT में या ओरल एग्जाम्स में कॉलेज के थ्रू अगर 20 मिला हो, इट वॉज जस्ट ऑफ 100। अगर 19 भी उसको मिला हो देन इट वॉज 99। आई वॉज सो एक्साइटेड टू गिव हिम 80 मार्क्स। ये पेपर बोल अभी तक का मेरा इट वॉज लाइक बेस्ट पेपर। मैं वो पेपर को हमेशा चेक कर रही थी जस्ट टू सी कि इतना परफेक्ट कैसे बच्चा ने इतना प्रैक्टिस किया होगा, इतना प्रैक्टिस की नीड होगी कि सब कुछ एक झटके में लिखना। फिर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप अदर क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो, इतना टाइम है आपके पास। मतलब आप सोच सकते हो जो पेपर आपको 3 घंटे के लिए मिलता है, सेम पेपर उस बच्चे को भी 3 घंटे के लिए मिला होगा, तो उसने इतना एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दिया था। इट मीन्स कि कुछ ना कुछ प्रैक्टिस लेवल जो था वो एक हाई था। Okay, so I think your doubts, all doubts are solved. मैम ने अच्छी तरह से इलेबोरेट किया है कि आपको कैसे क्वेश्चन लिखना है, आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, आप क्या कर सकते हो, सीक्वेंस क्या होना चाहिए। देयर इज़ नो एक्चुअली नीड फॉर द सीक्वेंस, बट मैम सजेस्ट कि ये पहले क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन आपको बाद में सॉल्व करना है, तो ताकि अगर आपने आज भी पढ़ाई को शुरू कर दिया है तो you can score a good marks in your bookkeeping and accountancy paper. Okay, so thanks a lot, ma'am, for sparing a time for JKSC students. Students, I hope you have already, we have already solved your doubt from bookkeeping and accountancy. So only few days are left. Only few days are in your pocket, so utilize these days in a proper manner ताकि आप बोर्ड में एक अच्छा एक्सलेंट स्कोर कर पाए। And I again offer my word of thanks to Rehana ma'am to come here all the way from traveling and guide our students. So thanks a lot, ma'am. Thanks a lot. Thanks a lot.